Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy, MBA CED 2022, 23rd August, slot 1. There was a new question type of decision making. So this is not a new question type. They used to ask such type of questions 5-6 years ago, but it has been reintroduced in CET. ठीक है? Prior to that, we have made a video on new question type of abstract reasoning or non-verbal reasoning or conceptual reasoning, है ना, जो डायग्राम वाले ये रहते हैं, है ना. So we have made a separate video. A new type of abstract reasoning questions were asked in MBA CET. तो उसके लिए separate video बनाया है. I will tag that video at the end of this video so that you can check that as well. Other important video which we have made is the analysis of slot 1. In that analysis, we have told you about the paper pattern, level of difficulty, and the number of questions of any particular topic. है ना, तो जैसे कितने puzzles आए थे, कितने RC आए थे, है ना. Also about the level of difficulty of the paper. So both these videos are important. You must watch it before writing your exam tomorrow or day after tomorrow. ठीक है. So there was this new type of decision making question. I tried to ask many students about this new type, but no one is able to recollect it properly. It was something related to, are you, matlab, there were certain conditions. You are an ex-army officer or are currently working in army, son of the judge, ऐसा कुछ तो था, and related to investment कुछ तो एक कुछ conditions थी. On the basis of that, you have to take the decision. So even though we don't have the exact question of that decision making, we have similar type of questions of decision making. ठीक है. डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी इजी क्वेश्चन टाइप इन एमबीए सीईटी. इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस जो आएंगे वो हाथ के 5 क्वेश्चंस है. यू कैन सॉल्व इट, मतलब नींद में भी सॉल्व कर सकते हो, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं. सो विल गो थ्रू 2 एग्जांपल्स टुडे. 2 एग्जांपल्स के थ्रू जाएंगे. इससे आपको समझ में आएगा कि ये कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल करना है. ठीक है. So let us try to solve the first question. Now it is recommended that you pause the video, try it yourself, and then look at the solution. ठीक है. Study the following information carefully and answer the questions given below. The following are the conditions for selecting a candidate in an organization. है ना, तो मतलब candidate selection करना है organization में. The candidate must have passed 12th exam with at least 60% marks. है ना, 12th pass, है ना. अभी don't read the complete question. You will have to, if you read the complete question, you will have to again revisit it. Write down your notes in short. ठीक है. 12th pass and greater than 60% marks. And at least बोला है तो greater than or equal to. These words are important. है ना. More than 60% and at least 60% इसमें difference है. ठीक है. This is your condition 1. What is condition 2? Have passed graduation degree in any discipline with 55% marks. है ना. ग्रेजुएशन पास चाहिए with minimum 55% marks. Be not less than 21 years old and not more than 30 years of age. है ना. तो 21 से 30 years के एज में रहना चाहिए as on 1/7/2016. ठीक है. Possess a certificate, diploma, degree, course in computer science. है ना. तो एक तो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस रहना चाहिए. ठीक है. इन द केस of candidate who fulfills all the conditions except number 2. ठीक है ना. अगर कोई कैंडिडेट पूरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको तो हायर कर लेना है ना. जैसे यहाँ पे दिया है, इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड. ठीक है. दीज आर द ऑप्शंस. इफ द कैंडिडेट इज टू बी रेफर्ड टू एग्जीक्यूटिव हेड, is to be referred to vice president, candidate should be selected, data inadequate, and candidate should not be selected. ऐसे 5 ऑप्शंस है. If the candidate satisfies all these 4 conditions, तो उसको सिलेक्ट कर लेना. But if the candidate who fulfills all conditions except condition number 2, है ना, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब 1, 3 and 4 सेटिस्फाई करता है, बट कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उसका कुछ तो एक्सेप्शन है. ठीक है. द कैंडिडेट
हैव पास डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एट लीस्ट विथ 55% मार्क्स, अगर वो कंडीशन टू सेटिस्फाई नहीं करता है बट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट एंड देन केस में बी रेफर्ड टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर वो ग्रेजुएशन पास है एंड बट 55% मार्क्स नहीं है तो उसको डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है देन रेफर दिस केस टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है। इन केस द कैंडिडेट हु फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस एक्सेप्ट कंडीशन नंबर 4 above but has studied computer science as one of the subjects in graduation, case may be referred to वाइस प्रेसिडेंट। मतलब ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, डिप्लोमा नहीं है या डिग्री नहीं है कंप्यूटर साइंस की, बट उसने कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है ग्रेजुएशन में, देन, है ना, एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, देन दैट कैंडिडेट शुड बी रेफर्ड टू वीपी। ठीक है। अभी ऐसा है, ऑल द केसेस आर गिवन टू यू एज ऑन 1/11/2016, है ना, जबकि अपने को डेट ऑफ बर्थ किसके हिसाब से चेक करनी है, 1/7/2016, बट ऑल द केसेस बिलो, all the following cases are given to you as on 1/11/2016, 1st November 2016. एक common mistake which many candidates do is, let us say condition 1 is satisfied, condition 2 is not satisfied but A is satisfied, condition 3 is satisfied, 4 is not satisfied but B is satisfied, such candidates will be rejected। ठीक है ना, यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़ो, in the case of candidate who fulfills all the conditions except 2, मतलब the candidate should fulfill all the remaining 3 conditions except 2, and फिर वो 2 के 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर वो ए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को देता है। ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट है जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली रिजेक्टेड है। ये चीज समझना पड़ेगा आपको कि ऐसे वाले कैंडिडेट जो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 3 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एंड 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट ए सेटिस्फाई कर रहा है, बी भी सेटिस्फाई कर रहा है, स्टिल बोथ द कैंडिडेट शुड बी रिजेक्टेड। ठीक है। 1 सेटिस्फाइड, 3 सेटिस्फाइड, 2 नॉट सेटिस्फाइड बट ए सेटिस्फाइड, 4 नॉट सेटिस्फाइड बट बी सेटिस्फाइड, सच कैंडिडेट्स शुड ऑल्सो बी रिजेक्टेड। ठीक है। बिकॉज when 2 is not satisfied, it is necessary that 4 should be satisfied. And when 4 is not satisfied, it is necessary that 2 should be satisfied. ठीक है। And 1 and 3 are necessary conditions। ठीक है। 1 and 3 are necessary conditions। अगर अगर एक आधे कैंडिडेट को 12th में 58% मार्क्स है, सो ही इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई कैंडिडेट, ही इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई कंडीशन 1, तो वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसका कोई एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं, जैसे 2 सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसका एक्सेप्शनल कंडीशन है, बट अगर 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसका एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है। लक्ष्य करके कोई तो एक कैंडिडेट इज अ कॉमर्स ग्रेजुएट विथ 57% मार्क्स, कॉमर्स ग्रेजुएट है। ठीक है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, जबकि मेरे को चाहिए था कंप्यूटर साइंस। ठीक है। ही इज अ कॉमर्स ग्रेजुएट विथ 57% मार्क्स, तो कैन ग्रेजुएशन पास है with above 55% marks, तो condition 2 satisfied. He has scored 73% marks in 12th exam, तो condition 1 is also satisfied. He had studied computer science as one of the subjects in class 12, है ना। He is not a computer science graduate, तो condition 4 तो satisfy नहीं हुई। ठीक है। तो 4 का एक्सेप्शन क्या है, बी। बी कंडीशन क्या कहती है, he should have studied computer science as one of the subjects in graduation, है ना, सब वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन, बट इसने ही हैज स्टडीड कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन क्लास 12, तो कंडीशन बी भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। ठीक है। तो 4 भी सेटिस्फाई नहीं हुई, उसकी एक्सेप्शनल कंडीशन बी भी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो डेफिनेटली दिस कैंडिडेट मस्ट बी रिजेक्टेड। ये आगे की पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इज ही फॉलोइंग इन दैट एज रेंज, नहीं ना, है ना। वो कंडीशन 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसका एक्सेप्शनल कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसको वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। सिमिलरली लेट अस ट्राई टू लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन, रुचि इज अ हैज अ बीए डिग्री
एग्जामिनेशन इन सेकेंड क्लास विथ 56% मार्क्स। तो ग्रेजुएशन पास है विथ 56% मार्क्स, तो कंडीशन 2 सेटिस्फाइड। एंड क्लास 12 इन फर्स्ट क्लास विथ 68% मार्क्स, तो कंडीशन 1 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। शी हैज कंप्लीटेड अ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, है ना, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस चलेगा, कंडीशन 4 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। शी विल बी 35 ईयर्स ऑफ एज इन नवंबर 2021, तो नवंबर 2021 में वो 35 ईयर्स की हो जाएगी, तो नवंबर 2016 में वो 30 ईयर्स की रहेगी, है ना, वो 30 ईयर्स की रहेगी। ठीक है, नवंबर 2016 में 30 ईयर्स की रहेगी। अभी मेरे को तो 1 जुलाई 2016 चाहिए, है ना, 1 जुलाई 2016 चाहिए, ये तो वो नवंबर 2016 में हो रही है ना। तो 1 जुलाई, जुलाई 2016 में, जुलाई 2016 में शी विल बी लेस देन 30 ईयर्स, है ना, शी विल बी लेस देन 30 ईयर्स, तो कंडीशन 3 भी सेटिस्फाई हो गई। सो दिस कैंडिडेट is satisfying all the conditions, है ना, this candidate is satisfying all the conditions। ये चीज ध्यान में रखो, 35 years of age in November 2021। ठीक है, तो नवंबर 2016, फिर से बता रहा हूँ, नवंबर 21 में शी इज 35, तो नवंबर नवंबर 16 में शी विल बी 30। जुलाई 16, जब अपने को कब की एज देखनी है, शी शुड बी बिलो 30 ईयर्स इन ऑन दिस डेट, है ना, तो जुलाई 16 में शी इज डेफिनेटली लेस देन 30, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। दिस कैंडिडेट इज सेटिस्फाइंग ऑल दी नेसेसरी कंडीशंस, है ना, मैंडेटरी कंडीशंस तो छोड़, मतलब एक्सेप्शनल कंडीशंस तो छोड़ो, जो नेसेसरी कंडीशंस है, मैंडेटरी कंडीशंस है, वही सेटिस्फाई कर दिए। सो दिस कैंडिडेट मस्ट बी सिलेक्टेड, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, राहुल हैज पास्ड क्लास 12 एग्जाम विथ 67% मार्क्स, क्या बात है, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। आफ्टर विच ही डिड 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स किया तो भी चलेगा, तो कंडीशन 4 इज सेटिस्फाइड। ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन विथ 62% मार्क्स, तो बहुत ही सही, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर दिया विथ 62% मार्क्स। एंड हिज डेट ऑफ बर्थ इज 25 मई 1988। अभी 25 मई 1988 वाला बंदा, 1988 वाला बंदा यहाँ तक किधर जाएगा, 28 ईयर्स का रहेगा, है ना, तो 28 ईयर्स का है, तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। सो दिस कैंडिडेट राहुल इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस, हेंस ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। यू पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन। Study the following information carefully and answer the questions given below. Following are the conditions for admitting students for a program in management, है ना, तो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, उसके लिए किसी को एडमिट करना है स्टूडेंट को, तो दिए कंडीशंस है। मट नॉट बी लेस देन 24 ईयर्स एज ऑन 1 दिसंबर 2016, ठीक है ना, तो एज मस्ट बी ग्रेटर देन 24, 1/12/2016 को। बी अ पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, पोस्ट ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन विथ 55% मार्क्स, है ना, एटलीस्ट बोला है तो इक्वल टू 55% मार्क्स भी चलेंगे। ठीक है, हैव पास द रिटन टेस्ट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, तो एक कोई तो रिटन टेस्ट लिया है, उसमें ग्रेटर देन 60% मार्क्स है। हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स आफ्टर कंप्लीटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, आफ्टर पीजी, है ना, बिफोर पीजी नहीं चलेगा, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन 6 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस, है ना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में वर्क एक्सपीरियंस लेगी, वो नहीं चाहिए। इन केस, in the case of an applicant who fulfills all other conditions except condition number 2 above but have completed MTech degree, his case can be referred to डायरेक्टर। मतलब अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है बट कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं करता है,
तो उसके लिए एक्सेप्शन कंडीशन क्या है कि उसके पास एमटेक की डिग्री रहनी चाहिए, एंड फिर उसका केस जो है वो डायरेक्टर को हम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मस्ट है। नेक्स्ट क्या है, इन द केस ऑफ एन एप्लीकेंट हु फुलफिल्स ऑल अदर कंडीशंस एक्सेप्ट कंडीशन नंबर 3 अबव बट हैज वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 years, हिज केस कैन बी रेफर्ड टू रजिस्ट्रार। मतलब कंडीशन 3 कि यार उसको रिटर्न टेस्ट में 60% मार्क्स नहीं आए हैं, बट उसके पास वर्क एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन 2 years, work experience is greater than 2 years, then this candidate can be referred to registrar। ठीक है, ऐसा है। अभी ये ऑप्शन है, केस मस्ट बी रेफर टू रजिस्ट्रार और टू डायरेक्टर, एप्लीकेंट को एडमिट कर लिया, या फिर इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है, या फिर एप्लीकेंट को एडमिट नहीं किया। ठीक है, पहला केस, मेगा हैज सिक्योर्ड 72% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड, एंड हैज बीन वर्किंग फॉर 5 years आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो 4 पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तो 6 महीने का ही था, बट शी हैज बीन वर्किंग फॉर 5 years, तो कंडीशन 4 इज सेटिस्फाइड। शी वॉज बॉर्न ऑन 1998, 1988 को बॉर्न हुई है, तो 1988 को बॉर्न हुई है तो 2016 तक 28 साल की हो जाएगी, तो कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई होगी। देर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द रिटर्न टेस्ट, है ना, थर्ड कंडीशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, सो डेटा इनएडिक्वेट, ऑप्शन डी इज योर आंसर, है ना। रिटर्न टेस्ट का कुछ डेटा नहीं मिलेगा तब तक हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ऑप्शन डी इज योर आंसर। ऐसे इजी से पिद्दी से क्वेश्चंस रहते। सेकंड क्वेश्चन, अनिल हैज बीन वर्किंग फॉर 3 years आफ्टर कंप्लीटिंग एमटेक डिग्री। ठीक है, तो एमटेक डिग्री है तो पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने परसेंट है ये पता नहीं, बट आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन ही हैज 3 years का वर्क एक्सपीरियंस, तो कंडीशन 4 इज सेटिस्फाइड। ही वॉज बॉर्न इन 1990, तो 2016 तक ही विल बी 26 years old, तो कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। 60% मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट, तो 60% मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट, तो कंडीशन 3 इज सेटिस्फाइड। एंड 45% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, बट पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स ही है, तो कंडीशन 2 इज नॉट सेटिस्फाइड। बट इफ कंडीशन 2 इज नॉट सेटिस्फाइड, देन वील लुक एट कंडीशन ए। कंडीशन ए क्या है, एमटेक किया है क्या, ये पूछता है ना, तो हाँ भाई बंदे ने एमटेक किया है, सो कंडीशन ए इज सेटिस्फाइड। सो नाउ 1 2 एंड 4 इज 1 3 एंड 4 इज सेटिस्फाइड, 2 इज नॉट सेटिस्फाइड, बट 2 का एक्सेप्शनल कंडीशन, कंडीशन ए इज सेटिस्फाइड, तो सच केसेस शुड बी रेफर्ड टू डायरेक्टर। डायरेक्टर का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज रवीना हैज कंप्लीटेड हर पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 67% मार्क्स, तो कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, 67% मार्क्स है। शी हैज सिक्योर्ड 52% मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट, तो कंडीशन 3 सेटिस्फाई नहीं हुआ है। ठीक है, शी हैज बीन वर्किंग फॉर 6 years आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, सो आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था, बट शी हैज बीन वर्किंग फॉर 6 years, तो कंडीशन 4 इज सेटिस्फाइड। 3 का एक्सेप्शनल कंडीशन, दैट वर्क एक्सपीरियंस इज मोर देन 2 years, is also satisfied, so condition B is also satisfied. And then condition A, she was born on 20th August 1981, 1981 मतलब अभी तो वो कुछ 35 साल की है, अपने को बोला क्या है, एज शुड बी ग्रेटर देन 24, तो कंडीशन 1 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, तो 1 2 4 इज सेटिस्फाइड, 3 इज नॉट सेटिस्फाइड, बट उसका एक्सेप्शनल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इन सच केसेस द कैंडिडेट शुड बी रेफर टू रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए, है ना। सो इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस आएंगे, ये 5 क्वेश्चंस आप 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, एंड ये पूरे 5 के 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, इट इज दैट इजी। सो आई होप ये टाइप के क्वेश्चंस आप कमिंग स्लॉट्स में टैकल कर पाओ। Any other query if you have, you can connect with us on any one of these 3 social media platforms, or visit our website tarkasastra.co.in, or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.